Good morning, students. I hope you all are taking a good care of your studies and yourself. Today, I'm going to continue this poetry, Legend of the Northland, and today I'm going to explain you the extracts of this poem. So, I'm going to read out first extract. यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा है. You have to read it from your poem. So he came to the door of a cottage in travelling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. So first question is, who does he refers to in the first line? First line में he किसको कहा गया है? So answer is he refers to Saint Peter in the first line. Second question, what request did he make to the woman? Answer, he requested the woman to give him a cake. क्या रिक्वेस्ट की उन्होंने उस वुमन से? उन्होंने उस वुमन से कहा कि मुझे एक केक दे दीजिए. So third question is, was the woman rewarded or punished? Why? क्वेश्चन है कि उस वुमन को रिवॉर्ड दिया गया या पनिशमेंट मीन्स इनाम मिला या सजा. वाई, क्यों? सो आंसर इज द लिटिल वुमेन वॉज पनिश्ड. उनको सजा दी गई बिकॉज शी वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची थी. नेक्स्ट, गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स फायर प्लेस. एक वर्ड हमें बताना है इस पैसेज से, इन 4 लाइन्स में से, जिसका मीनिंग हो फायर प्लेस. तो आंसर इज हर्थ, H-E-A-R-T-H, hearth. Fifth question, what was Saint Peter doing? Saint Peter क्या कर रहे थे? And the answer is Saint Peter was traveling round the earth. Saint Peter अर्थ की ट्रैवल कर रहे थे. Last question, what was the little woman making? वो लिटिल वुमेन क्या बना रही थी? एंड द आंसर इज द लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. वो केक्स बना रही थी. सो सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. So the first question is, what did he ask her to give him? उन्होंने क्या देने के लिए कहा, क्या चीज़ मांगी? That a cake. आंसर है एक केक. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the poet of the above lines? ये लाइन्स किसने लिखी हैं? The answer is Phoebe Cary, P-H-O-E-B-E, Phoebe Cary, C-A-R-Y. Third question, trace a word from the extract that means weak. एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग हो वीक. Then the answer is faint, F-A-I-N-T, faint. Next question is, why was he fainting? वो क्यों भूखे थे या वो क्यों कमज़ोर पड़ रहे थे? He was fainting due to fast. वो भूख की वजह से फेंट हो रहे थे. नेक्स्ट इज, फाइंड अ वर्ड दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमली हंग्री. एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, जिसका एक वर्ड बताना जिसका मीनिंग हो एक्सट्रीमली हंग्री. एंड द आंसर इज फास्टिंग, F-A-S-T-I-N-G, फास्टिंग. सो our third para is, then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. So first question is, why was Saint Peter about to faint? Saint Peter लगभग बेहोश क्यों होने वाले थे? Answer, Saint Peter was about to faint as he had kept preaching and fasting all the day. क्योंकि वो पूरे दिन
प्रीच कर रहे थे ट्रैवल करके और खाया नहीं था उन्होंने पूरे दिन कुछ। नेक्स्ट बी, हाउ डिड द वुमेन प्रोवोक सेंट पीटर। प्रोवोक का मीनिंग बताया था मैंने आपको, किसी को नाराज़ कर देना, किसी को गुस्सा दिलाना, उकसाना। तो उस लेडी ने सेंट पीटर को कैसे प्रोवोक किया? आंसर, द वुमन प्रोवोक्ड सेंट पीटर बाय नॉट गिविंग हिम द केक। लेडी ने सेंट पीटर को केक नहीं दिया और उनको गुस्सा दिला दिया। And next is, name the poem from which these lines have been extracted. उस पोएम का नाम बताइए जिससे ये लाइंस ली गई हैं। And the name of the poem is A Legend of the Northland. Next and the last question is, what does the word provoke mean here? यहाँ पर provoke का क्या meaning है? And the answer is to make angry. And now I am going to explain you the short answered questions of this chapter. So the first question is, which country or countries do you think the Northland refers to? यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉर्थलैंड में कौन सी देश या कई देश, कौन कौन से देश आ रहे हैं, किन किन देशों के बारे में यहाँ पर कहा गया है? आई थिंक नॉर्थलैंड रेफर्स टू स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क एक्सेट्रा। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों के लिए कहा गया है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या चीज़ के लिए कहा? व्हाट वॉज द लेडीज रिएक्शन, और लेडी ने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया दी, क्या किया या क्या कहा? The answer is, Saint Peter asked the lady to give him a single cake from her store of cakes. सेंट पीटर ने उस लेडी से, उस वुमन से अपने केक के स्टोर से एक केक देने के लिए कहा। The lady did not give him any of the cakes because they seemed too big to her to be given. लेकिन उस लेडी ने एक भी केक नहीं दिया उनको, क्योंकि जितने भी केक्स उसके पास थे वो उनको बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे किसी को देने के लिए। So she made a small cake, then smaller and still smaller, but could not part with any because she was very selfish and greedy. तो इसलिए उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा केक बनाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन उनको एक भी नहीं दिया क्योंकि शी वॉज वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी। वो दे ही नहीं सकती थी, वो बहुत लालची थी। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही पनिश हर। सेंट पीटर ने उनको कैसे सजा दी, उस वुमन को? आंसर, शी वॉज टर्न्ड इनटू अ वुड पैकर बाय सेंट पीटर्स कर्स। कि वो सेंट पीटर के कर्स, श्राप के कारण एक वुड पैकर में टर्न हो गई, बदल गई। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड। उस वुड पैकर को उसका खाना कैसे मिलता था? द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग इनटू ड्राई एंड हार्ड वुड ऑफ द ट्रीज। ड्राई, हार्ड। तो वुड पैकर को उसका खाना लकड़ियाँ, जो पेड़ों की सूखी और सख्त लकड़ियाँ होती थी, उनको बोर करके, उनको खोद करके मिलता था। क्लियर? इन द नेक्स्ट, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर and have a great day. Goodbye.